پاکستان میں علیحدگی کا منشور پیش کیا اور حکومت کون سی تھی؟ برطانیہ کے زیر سایہ یہ ملک تھا۔ اور یہ آزادی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن ہم برطانیہ سے آزاد ہوئے، ہندوستان سے آزاد نہیں ہوئے ہم برطانیہ سے، کیونکہ اس وقت ہندوستان بھی یہ چاہتا تھا کہ میں برطانیہ سے کیا حاصل کروں، اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم برطانیہ سے کیا کریں، آزادی حاصل کریں۔ اور آخر آزادی میں ایسی کون سی وجوہات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آزادی پسند کرتا ہے، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے، اپنی من مرضی پسند کرتا ہے، اور آزادی اس چیز سے لی جاتی ہے جس چیز کے ہم غلام ہوں۔ ہم جس چیز کے غلام ہیں، غلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کیا حاصل کروں، آزادی حاصل کروں۔ اور دنیا کی تاریخ کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے علاوہ اور مسیحوں کے علاوہ دنیا کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو ہے آزادی کا کنسپٹ جو ہے وہ موجود ہے، آزادی کا ویژن جو ہے ان کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، اور ان کے اندر جو چیز موجود تھی، جب کوئی غلام، اس وقت غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اور غلام جو ہے وہ خریدے جاتے۔ آپ اس بات سے بھی بخوب واقف ہیں کہ جب کلام مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو یوسف کو کن کے حوالے کیا گیا؟ کون لوگ تھے وہ؟ جنہوں نے خریدا تھا وہ تاجر کون تھے؟ اسماعیلی تھے، وہ تاجر اسماعیلی تھے، اور اس کو کنویں سے نکال کر جو ہے اس کے بھائیوں نے اس کو کیا کیا؟ اسماعیلی کے تاجروں کے آگے بیچ دیا۔ اب وہ اسماعیلی تاجر جو ہے وہ کہاں پہ جا رہے تھے؟ مصر کے اندر۔ اور جب مصر کے اندر جا رہے تھے تو مصر کے اندر جو ہے، کیونکہ یوسف جو ہے ایک خوبصورت شخص ہے جس کی خوبصورتی جو ہے دنیا کے آگے جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ اس کی خوبصورتی کے آگے دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ کمزور ہے، کہ اتنا خوبصورت تھا وہ، اور اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود جو ہے وہ غلامی میں بیچا گیا، غلاموں جیسی زندگی بسر کرنے لگا مصر کے اندر۔ بے شک یہ الہی منصوبہ بھی تھا، یہ منصوبہ خدا کا منصوبہ تھا، کسی انسان کا منصوبہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہاں پہ جا کر جو ہے اس کو کس نے خریدا؟ پوتیفار نے، اور اس نے اسے اپنے گھر میں ملازم ہے، نوکروں میں شامل ہے۔ جبکہ بائبل کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، جب ہم پیدائش کی کتاب 15 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ کنسپٹ ملتا ہے کہ خدا جب ابراہیم خدا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند رویا کے اندر کہ خداوند میں دنیا سے بے اولاد جاتا ہوں اور میری جائیداد کا مالک جو ہے وہ مشکل لازر ہے، اور یہ شخص جو ہے میرا خانہ ذات جو ہے، جو میرا غلام ہے، جو میرا نوکر ہے، یہ میری جائیداد کا وارث بن ہے۔ لیکن تم نے تو خدا مجھے اولاد دی، اور جب اسے اولاد نہیں دی گئی تو خدا نے اسے کہا کہ آپ باہر نکل، اگر آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اگر ریت کے ذروں کو تو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد جو ہے ان کی مان لے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ خداوند میں کیوں کر جانوں کہ تو مجھے اولاد دے گا؟
जानने का मकसद ये था, जब यहाँ पे क्यों कर जानू का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका सैको सवाब हम जो निकालते हैं वो ये है कि वो चाहता है कि खुदावन तुम मुझे कोई निशान दे, क्योंकि निशान जो है ये एक उस जमाना के अंदर जो है जब भी किसी शख्स के साथ कोई मुआहदा होता था तो उनके दरमियान में कोई ना कोई निशान ठहराया जाता था। जैसे हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यकूब के दरमियान और लाबन के दरमियान भी एक निशान ठहराया गया था, एक मुआहदा हुआ था। अब वो मुआहदा क्या था? उनके दरमियान मुआहदा कौन सा था? आग जलाई दी गई। आग को जो है उन्होंने पत्थरों के ढेर को और आग को उन्होंने दरमियानी बना लिया। हमें यकूब के दरमियान और लाबन के दरमियान ये ऐद होगा, ये निशान होगा। और इसी तरह वहां पे जब उसने कहा कि खुदावन मैं क्यों कर जाऊं, तो खुदावन ने कहा कि खुदावन ने सब कहा कि ये अब निशान तलब करता है। अब निशान के इवज खुदावन ने कहा कि तुम क्या कर, मेरी हजूरी में कुर्बानी पेश कर। अब कुर्बानी कितने जानवरों की थी? मेंढा ले, बर्रा ले, उमरियां ले और बकरी का बच्चा ले, और ये सारा कुछ मेरी हजूरी में पेश कर। और तेरे मेरे दरमियान ये निशान होगा कि मैं इस कुर्बानी में से गुजरूंगा और ये कुर्बानी बसम हो जाएगी। और जब ये कुर्बानी जो है बसम होने को थी तो इब्राहिम पर गहरी तारीकी छाई है और उस पे इतना जो है खुदी छाई है कि वो नींद में चला गया। पहले तो शिकारी परिंदों को उड़ाता रहा, सैरिंग भगाता रहा, लेकिन जब थक गया, इंतजार ना कर सका। और आज हम भी खुदा का कभी इंतजार नहीं करते। हम कहते हैं कि रात को दुआ की और सुबह क्या हो, हर चीज क्लियर। अगर क्लियर ना हो तो फिर पता क्या, पापी को कोई ब्लेसिंग नहीं, पापी किसे कामदा नहीं, या मुबशर किसे कामदा नहीं, आइडल किसे कामदा नहीं। ये देखो है कि क्योंकि मैं दुआ करवाइए कुछ बानी नहीं पाया। हम ऐसी बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। अब वो भी इंतजार नहीं कर सका, उस पर नींद का गलबा है और नींद के गलबे के अंदर ही लिखा है कि खुदावंद वहां पे आया और खुदावंद ने उसे कहा यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग दूसरे मुल्क के अंदर कितना अर्सा गुलामी में रहेंगे, 400 साल जो है वो वहां पे गुलामी में रहे और यहाँ से उनकी गुलामी का काम शुरू हो उसकी नस्ल में। और जब हम देखते हैं तो जब वो उसकी सारी नस्ल जो है काल पड़ता है और यूं काल जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, और जब काल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है तो यकूब के घराने के अंदर भी काल से जो है लोग मुतासर होते हैं। और यकूब का खानदान जो है यूं कहाँ पे चला गया? मिस्र के अंदर। और मिस्र के अंदर जाकर जो है कुछ अरसा तो उन लोगों को जश्न का इलाका दिया गया, अच्छी उनकी उस वक़्त के हाकम की, क्योंकि उस वक़्त का हाकम जो था वो यूसुफ था और उसके पास मिस्र का बहुत कंट्रोल आ चुका था, और उस वक़्त का बादशाह जो था वो फराऊन था। और फराऊन जो है इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करता गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फराऊन का ओहदा जो है वो चेंज होता गया और नए नए लोग हुक्मरानी करने लगे, और यूं इसराइल जो है वो क्या किसमें चला गया? गुलामी में। अब उस गुलामी को दूर करने के लिए जब हम बाइबल मुकद्दस लूका की अंजील को देखते हैं तो लूका की अंजील जो है 4 बाब के 18 आयत से लेकर 19 आयत में देखते हैं तो वहां पे हमें एक बड़ी खूबसूरत आजादी की तस्वीर नजर आती है। अब वो तस्वीर कैसे नजर आती है इसको हम पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदगी बख्श के कलाम में से। लूका 4 बाब और उसकी 19 आयत और 18 आयत से लेकर 19 आयत तक। और
मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए नशा किया, और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई दूं और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं। कुचले हुओं को क्या करूं? कुचले हुओं को क्या करूं जी? आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनाफी करूं। अब यहाँ पे जो है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे जो बात कहते हैं, लिखा है कि कुचले हुओं को क्या करूं? आजाद करूं। और जब हम बाइबल का मुतालिया वहीं से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे भी जो है इस्राएल कौम जो है वो कुचली जा रही है। अब उनके ऊपर जुल्म और सितम की बरसात शुरू हुई है। जब जिस हुक्मरान के दौर में वो वहां पे गए थे, उस जमाना के अंदर उनकी जिंदगी में सुकून तो था, लेकिन जैसे ही वो हुक्मरानी चेंज हुई और दूसरी हुक्मरानी ने आकर जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर जुल्म करना। और जब उनके ऊपर जुल्म शुरू कर दिया तो जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी, और उनके आगे जो है पहले तो वो भूसे का डालते थे ईंटों के अंदर और ईंटें बनाते रहे, और फिर उनके ऊपर जो है इतना जुल्म किया गया कि उनसे वो ईंटें भी ले ली गई, उनसे भूसा ले लिया गया। अब खाली गारे से जो है आपने क्या करना है, ईंटें बनानी है, और उतनी ही तादाद में बनानी है जितनी बनाते आ रहे हो, उतनी ही ईंटें डालनी है। और वहां पे उनसे ये जुल्म और ज्यादती, उनके लोगों यहाँ तक उनके ऊपर जुल्म हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ के इनकी औलाद जो है वो बहुत मिस्र के अंदर बढ़ने लगी है और ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने इनके ऊपर कानून जारी कर दिया, और वो कानून ये था कि अपने लोगों को, मिस्र के बादशाह ने कानून जारी किया कि इन यहूदियों के इस्राएलियों के दरमियान में अगर कोई बेटा पैदा हो तो उसे क्या करना, कत्ल कर देना। अगर कोई बेटी पैदा हो तो उसे छोड़ देना। अब इतना जुल्म जो है वो उस मुल्क के अंदर उनकी जिंदगी के ऊपर होता है, और जब उनकी जिंदगी के ऊपर इतना जुल्म होता है, फिर हमें वो जिस्मानी कहावत याद आती है कि जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। और जब उनकी आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती, और जब वो कुचले जा रहे हैं, कोई उनके पास खुशखबरी नहीं है, और जब वो कैद में डाल दिए जाते हैं, कोई उनके पास उम्मीद नहीं रहती, और जब वो कैद खाने में हैं और कुचले जा रहे हैं, और वो उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, और उस वक्त उनको एक पैगाम जारी हुआ। उस वक्त खुदावन ने उनकी आवाज को क्या किया, सुना। और जब खुदावंद ने आवाज सुनी तो खुदावंद ने एक शख्स को उनके दरमियान में ही लिया और उनके दरमियान में ही खड़ा किया, और उसको ये कहा कि इनकी फरियाद जो है मेरी हजूरी में क्या हुई है, पहुंची है। इनकी फरियाद मेरी हजूरी में पहुंची है, और उनकी फरियाद जब उनकी खुदा की हजूरी में, जिनका कोई नहीं पूछता, जिनके साथ कोई सलूक अच्छा नहीं किया जाता, और जिनके साथ जुल्म ज्यादती जिस कलियत के साथ होती है, जिस मुल्क के अंदर जुल्म सितम होता है, और उनकी आवाज नहीं सुनाई जाती, और उनकी आवाज उस वक्त खुदा सुनता है। उनकी आवाज को खुदा सुनता है, और इस्राएल की आवाज को जब खुदा ने सुना है, और उस वक्त खुदावन ने मूसा को खड़ा कर दिया। इस कौम की आवाज मेरी हजूरी तक पहुंची है, मेरे कानों तक पहुंची है। अब तू क्या कर, इनके लिए तैयार हो, और इनको क्या करना, इस मुल्क से लेकर निकलना। आजादी की तहरीक से मैं कहूँगा कि आजादी के लिए खुदा ने उस वक्त खुदा ने उसमें मुदाखलत की। और मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हमारे इलाके में एक गांव क्या कस्बा है, और रोड के ऊपर है वो, उसको लालापुर कहते हैं, नहीं सॉरी, शेरे दा कोट कहते हैं। और शेर जो था, शेर जो जिसके नाम से ये इलाका आबाद हुआ,